ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. So let's begin. In the previous class, that is last part, we covered important Venn diagram, profit loss questions. Today, we are going to cover, let us see what it is. So today we have got special topics specific to linear equation, combination, permutations, sitting arrangement, which are going to be covered step by step. So let's start with the first one. The linear equations in 2 or 3 variables are specifically type of questions which are going to ask us to find the solution. Okay, तो solution किसका? अगर बात आती है linear equation की, इसका मतलब line, right? So when we talk about line and the solution with respect to lines, it is nothing but they are asking the point of intersection. जैसे ये दो lines है. Now this is one line indicating a1x plus b1y is equal to c1. And then there is another line which indicates a2x plus b2y equals to c2. Now, because these two lines are their own independent, there may be some point of time where they, if extended, they would meet. जैसे अगर ये line ही अगर मान लो extend की होती तो ये दोनों lines first and second would have met at some point, right? किसी एक जगह पे वो meet कर रहे होते, तो वो एक जो जगह है, that one specific point, it may be many as well, ना बहुत सारे होते हैं, हो सकते हैं, ये बहुत सारे कब होंगे, कौन सी condition में होंगे, we'll see that. But for now there is one point, there is one solution, right? तो उस solution को find करने का हमारा main दायित्व है. That is all. Now we'll see कि which are the different conditions in which two lines can be intersecting, or two lines can be coinciding, or two lines can never be, intersecting. तो वो देखिए. So since the two equations are of degree 1 degree माने x raised to, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर हम line draw करते हैं like x and y coordinates, so coordinate system में x and y, so we see there are lines, right? जैसे ये एक line है, okay? Yes, this is one line. तो उसका x intercept कौन सा है? x intercept वो होता है जहाँ पे वो meet करेगा, right? तो मान लो अगर हम extend कर देते, so this is that one point, the point where the value of y would have been 0. Sorry, value of x would have been 0. This is that point. जब x का value 0 है, now this is x coordinate system, x, and this is y, right? तो इस बड़ी सी लाइन का इंटरसेप्ट कौन सा है? ये जो आप थोड़ी छोटी सी ब्लू लाइन देख पा रहे हो, राइट? सिमिलरली अगर मान लीजिए ये लाइन अगर किसी पॉइंट पे जब y का वैल्यू 0 होता, y का वैल्यू जब 0 होता, तब अगर वो इंटरसेप्ट करती तो उसका x इंटरसेप्ट भी होता, राइट? तो वो सभी वैल्यूज मिला के वी गेट दीज वैल्यूज, दिस ये जो होता है कोएफिशिएंट जिसको हम कहते हैं. सो व्हेनेवर दीज two lines we are supposed to solve, these coefficients are going to come at our rescue. तो इनको बिल्कुल भी neglect नहीं करेंगे, even not neglecting their signs. Okay, signs माने जैसे plus minus. So when we talk about these two lines,
a1x plus b1y equals to c1, we see the power of y and the power of x is 1, right? That means degree 1. तो ये एक लाइन हो गई. मान लो if it was degree 2, what it could have been? सोच लीजिए what it could have been. आप मैसेज कर सकते हैं. It could have been ellipse, hyperbola, है ना? It could have been something like a circle. It's most possibly circle, है ना? सर्कल का ही वो वेरिएशंस होते हैं बाद में. तो this is not a circle but a line. x raised to 2 नहीं है, just 1 है, degree 1 है. So when we talk about these lines, let's see how to solve the question. So जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 3 कंडीशंस होते हैं. एक तो जिसमें जब ये आप x and y कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हैं और कंडीशन समझ रहे हैं कि मान लो अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना? सॉल्यूशन. सो दैट मींस ये 2 लाइंस का एक सॉल्यूशन है. So there's exactly one common point. That means there is one solution. Now, अगर 2 lines parallelly जा रहे हैं, then can they meet? Yes or no? No, they will never meet. So इसका मतलब क्या है कि no common point and that is no solution. Solution भी नहीं है. Okay? इनफाइनाइट तक भी जाएंगे तो भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इंफिनिटी तक. सिमिलरली देयर इज अनदर कंडीशन वेयर द 2 लाइंस कोइंसाइड. नाउ विल आल्सो सी, हम पता लगा पाएंगे कि कोई लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब जैसे उसके इक्वेशंस को ही देख के पता लगा पाएंगे कि 2 लाइंस कोइंसाइड कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर लाइक पैरेलली एक दूसरे को पैरेलल फॉर्म में ले जा रहे हैं. Okay, so here the lines are coincident. They are just over each other, overlap. So there are infinitely many points. अब infinitely many points क्यों कहा है? Because हर एक point पे एक line का मतलब like if there are so many meeting points, this is one line and then there's another line over it. So there are infinitely many common points and infinitely many solution. तो ये हो गए 3 कंडीशंस. तो हमेशा 3 कंडीशंस ही रहेंगे और इन्हीं 3 कंडीशंस में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे फर्स्ट कंडीशन अगर आई, मान लो इफ द 2 लाइंस आर मीटिंग एट वन पॉइंट, राइट? सो इस कंडीशन में हमें, या फिर यू कहे तो इफ यू आर गिवन 2 इक्वेशंस, then how to identify whether they are coincident or whether they are parallel or whether they are meeting at one point only. So how do we know that? That is with the coefficients, जो अभी थोड़े टाइम पहले बताया था. तो what would be the rule? जो coefficient का पहला भाग है, मतलब x इंटरसेप्ट का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशंस के x के कोएफिशिएंट का रेशियो will never be equal to y के कोएफिशिएंट का रेशियो. So a1 upon a2 will never be equal to b1 upon b2. Okay, so if this condition follows, then that means the equation has a unique solution. And it is very easy to understand कि मान लीजिए we'll see that. हम अभी थर्ड केस में आएंगे तब हमें पता चलेगा कि why am I saying so. So we did not remember this. This is not something which we should be doing rectification, but understanding the logic will help us sail through. Second point says, अगर मान लीजिए 2 लाइंस का रेशियो सेम है, अब तक तो सेम नहीं था, बट अगर सेम हो गया तो सेम होकर भी एक वैल्यू डिफाइन किया, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to k. Okay, then there are 2 chances. एक चांस तो ये है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2
इज इक्वल टू C1/C2, मतलब दो लाइंस ऑलमोस्ट सेम ही है, उनका रेशो बस रेशो सेम है. सो दे आर जस्ट लाइक एक लाइन दूसरे का मल्टीपल, या यू कहे तो दे आर overlapping, they're same but overlapping each other. So इस condition में the solution are going to be infinite. The system has got infinite solution. What is this condition? ये वाली तीसरी condition. जब सारे coefficients का ratio same हो जाए तब वो तीसरी condition हो गई. अगर मान लीजिए first two coefficients का ratio same है but तीसरे वाले का नहीं, C1/C2 जो आप देख पा रहे हैं B1/B2 is not equal to C1/C2. In such case, system has got no solution and the lines are parallel. So if I say 2x plus 3y equals to 5. And if I say 4x plus 7y equals to 10. Now, इस condition में what rule would be? Yes, what would be the rule? What would it be? Condition A, B, C. क्या होगा ये? It will be A, right? Why? Because उनका ratio same है. Ratio किसका same है? We'll see. Ratio coefficients का same नहीं है. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2/4. Let me draw it properly. Yes, 2/4 is not equal to 3/7. Is that done? Now, it may be, this 2/4 may be equal to this C1, A1/A2 may be equal to C1/C2, but it is not equal to B1/B2, right? तो वो कंडीशन तो ऐसा है कि आपको तीनों को फॉलो करना है. अगर तीनों को फॉलो हो गया तो फिर इनफाइनाइट. और ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट अगर सेम है रेशो का, मतलब A1/B2, A1/A2 इज इक्वल टू C1/C2, तब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है. सो दैट इज व्हाई ये कंडीशन भी फॉल्स प्रूव हुई. ऊपर वाली तो हो गई, ये वाली भी हो गई फॉल्स. It may be C1/C2 may be equal to A1/A2, but it is not equal to B1/B2. That is the reason why we are fine with this, because सबसे पहले तो यही चेक करना है ना. तो we see here it is not following, so it is case A. इसका मतलब क्या है? इसका एक solution होगा. इन दो लाइंस का एक पॉइंट ऑफ मीटिंग सेंटर होगा जहाँ पे वो दोनों लाइंस मीट करेंगे. And that वो जो point जहाँ पे वो meet करेंगे, that will be the solution. Okay, so if we have another equation जिसमें मैं इसी में छेड़छाड़ कर लेती हूँ. चलो इसी equation में छेड़छाड़ कर लेती हूँ. If we had got the chance of 6, 2/4 equals plus 2x plus 2x plus 3y equals to 5, 4x plus 6y equals to 10. Now, इस कंडीशन में just a minute, मेरा इंटरनेट इशू आया थोड़ा सा. Okay, is my net fluctuating? It's better. Okay, fine. Correct. It's the second scenario, right? Second scenario, जिसमें दोनों लाइंस पैरेलल है. सॉरी, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ गए. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन. ऐसा क्यों? बिकॉज दो लाइन सेम ही है ऑलमोस्ट, बट जस्ट दैट मल्टीपल. आपने अगर एक लाइन को दो मल्टीप्लाई किया, जैसे इफ आई कुड टेल मल्टीप्लाई दिस 2x plus 3y equals to 5 into 2 from both sides, LHS and RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों जगह. तो फिर क्या आएगा? तो फिर ये आएगा. So it's the second case. अब अगर आगे बात आती कि 2x plus 3y equals to 5 and 4x
equals to 11. Now this is what? This is the third case scenario, जिसमें दो लाइंस ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर है, right? Coincident, right? So this is it. ABC conditions पता चल गए, and that is how we can just guess the type. अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Okay, let me one question. erase करती हूँ पहले सबको. तो अब जब वो जो अब हमने बोला था, that is same thing has been mentioned here. तो जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगे तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, जब लाइंस पैरेलल होंगे तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. सॉल्यूशन तो तब कहा जाता है जब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाए, राइट? कंसिस्टेंट एंड कोइंसिडेंट में फर्क है. यस. सो कोई भी जब हमें दो इक्वेशंस दे दिए जाएं, उनको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी रहता है. अगर हमें केस वन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मतलब केस वन कौन सा? जब एक सॉल्यूशन, जब बहुत सारे सॉल्यूशन है, उस कंडीशन में तो आप ऐसे ही सामने से ही देख के पता लगा पाएंगे बहुत सारे सॉल्यूशंस. इट्स जस्ट दैट it's one line is the multiple of the other one. अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर बात बनेगी ही नहीं. आप सॉल्व करते रहोगे बट आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज दो लाइंस कभी मीट ही नहीं करेंगी. सो that is the reason why it's important to first check whether the lines are having a solution or not. Okay, so after that first step is done, let us get ready to solve one question. So we have got two equations. First one is 2x plus ky equals to 1. Now this is one equation. K जिसमें unknown है. Then 3x minus 5y equals to 7. And you are asked, please tell me the value of k. Question mark, question mark, question mark. When you are told that it is having solution, तो मतलब क्या है? ये दो लाइंस कभी मीट नहीं करेंगे. अगर हमें ये पता है तो आपको अभी सॉल्व करना है. Solve to find the value of k quickly. Easy है. अगर हमने अब तक जो समझा है उसको अच्छे से ग्रास्प कर लिया तो आपको ये एक चुटकी भर का क्वेश्चन लगेगा. करेक्ट. बहुत जनों ने आंसर कर दिया है. इट इज, लेट्स सॉल्व इट. सो बिकॉज हमें मेंशन किया है कि इट इज नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन, इसका मतलब है 2 by, let me use the pencil, 2 divided by 3 is equal to k divided by minus 5. Minus 5. Right? 2 divided by 3 is equal to k divided by minus 5. इसका मतलब क्या है? दो लाइंस पैरेलल है.
दो लाइंस पैरेलल है, and it is not equal to 1/7. ये तो just एक understanding के लिए मैंने बताया. It's not, and C1 upon C2 is not equal to A1 upon B2, neither B1 upon B2. So now we know this. Can we solve it? Can we solve it? Yes, we can, right? So K is equal to minus 10 upon 3. Minus 10 upon 3. Isn't it easy? Now this was to make you understand how these simple rules can play a long way to help us solve the question with ease. Now let us go ahead to this cross multiplication type, जिसमें कि हम समझेंगे a technique to solve equations when you have to find one solution. Okay, so you may be given two linear equations in two variables. So a1 upon a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. उसके बाद क्या करें? उसके बाद ये करना है. अब ये थोड़ा सा आपको शायद अगर लगे कि ये it's something which is very tough to understand, let's break it apart. Okay, let's break it to understand. So what are we supposed to do? Whenever we talk about cross multiplication, it is applied when we know that the equations have got unique solution, right? So in such case, what do we do? A1 into B2. So it's like x multiplied by, let me use this one, x into A1 minus B2 equals to, sorry, 1 second. A1 into B2 minus B1 into A2. अब BODMAS लगाना हम, BODMAS technique, you know na BODMAS में B stands for what? Bracket, right? O stands for order, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction. तो वो order है कि सबसे पहले आप किसको लगाएंगे. तो यहाँ पे हम पहले multiplication part को लगाएंगे, right? So I need not draw separate borders because it is understood जब multiplication है और subtraction है तो पहले हम multiplication part को ही preference देते हैं. So after that point x part is done, A1 into B2, B1 into A2 minus of, let me use the eraser. X A1 B2 minus A2 B1 equals to B1 C2 minus C1 B2. अब ये मैंने कैसे किया? It's just that tie. So here we see A1 into B2. Let me use a spotlight. A1 into B2, B1 minus B1 into A2, then is equal to B1 into C2, B1 into C2 minus C1 into B2. Simple है. And then you just have to solve the value of x. क्योंकि हमें B1, A1, C1, B2, A2, C2 ये सभी पता होते हैं. बस एक वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है. जैसे आपको ये वैल्यू मिल जाएंगे, जैसे आपको x वैल्यू मिल जाएगा, x वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डालिए, y वैल्यू पे मिल जाएगा. Let's do it by actually solving the question. Okay? So let's start. मैम यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2x plus 5y minus 0 and 3x minus 4y
प्लस 14। ओके जी साक्षी जी, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस बताइए। हेलो, एक मिनट जी बताइए। हेलो। जी जी हाँ मैम, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, जो बैक वाला भी आपने इक्वेशन समझाई है। हाँ, मैं सॉल्व करती हूँ इस इक्वेशन को, तो उसी से सॉल्व हो जाएगा शायद, लगता है ना। sometimes it's easier to do with numbers than the alphabets. Let's do it with the numbers and see. तो जैसे मैंने पहले हाँ जी, आपने x इंटू इन ब्रैकेट a1 b2 माइनस b1 a2 लिखा है, तो वैसे इक्वल टू, तो y से इसको नहीं करना है, y से भी किया, बट हमें एक वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे x एंड y का एक वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। हाँ, तो दो x का इक्वेशन वैल्यू ढूंढने का है, इसलिए हाँ, जैसे हमें x का वैल्यू मिल गया तो फिर वो x वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डालिए, y का वैल्यू मिल जाएगा। वो समझ में आ गया। ये मैं वो दूसरी मेथड से करती हूँ ना इक्वेशन, कि अभी आपने ये क्वेश्चन दिया तो दो को दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन और पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लिकेशन करके मैं करती हूँ। समझ गई, ताकि आप x के कोएफिशिएंट्स को सेम करें। राइट, ये भी एक अच्छी टेक्निक है। दैट इज व्हेन यू हैव गॉट इजी कोएफिशिएंट्स। जैसे यहाँ पे 2 है 3 है, मान लीजिए यहाँ पे 14 होता, यहाँ पे 14 होता और यहाँ पे 17 होता, है ना। सो इन बड़े, अभी जैसे आपने बताया, दैट इज ऑल्सो ओके। इसमें क्या करना पड़ेगा, जब आपने ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे क्या हुआ, कोएफिशिएंट्स x के सेम हो गए और हमें फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। राइट, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, राइट। तो यहाँ पे बात आएगी 6x प्लस 15 15y। अरे मुझे लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं टैबलेट्स इसमें या सो इट वुड हैव बीन 6x प्लस 15 15y equals to 6 15 and 6x 4 8 minus 8y equals to so 28, right? So this is what you have received. Now जैसे कि रश्मि दीदी ने कहा, एक मिनट, इस इरेजर, आई जस्ट होप आई इरेज दिस पार्ट। ओके, 6x प्लस 15 15y equals to 6 and 6x minus 8y equals to minus 20. यही कहना चाह रहे हो ना रश्मि दीदी? हाँ हाँ, अभी क्या करना पड़ेगा? नाउ व्हाट रश्मि दीदी विल डू, शी विल डू द सब्ट्रैक्शन। मतलब जैसे मान लो हमें कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में लगाते हैं, दैट्स लाइक नलिफिकेशन। मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उस इक्वेशन के वैल्यू जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बट हमारी पर्पस का फुलफिलमेंट हो जाएगा। मैम वहाँ पे तो -28 आएगा ना एक। हाँ, और मैडम यस होल्ड ऑन, ये 52 है तो 3 2 6 5 3 15 156 आएगा ना? हाँ 156 आएगा, 156 5 3 15 एंड 3 2 6। यस, सो और इधर -28 आएगा। हाँ, so when we talk about subtraction, this part will get cancelled, minus into minus plus 15, so as try please, because 23y equals to, here we will receive it as 23y equals to 184 8 16 8। अच्छा, माइनस का प्लस 7y होगा, 7y होगा।
दिस विल बी माइनस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमने सब जगह माइनस कर लिया, राइट? तो दिस विल बी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे एडिशन हुआ, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे एडिशन हुआ अगेन, राइट? सो 7 दूनी 12, 13 14, सो हियर इट वुड बी y is equal to मैम वो तो 8 माइनस है तो प्लस कैसे हुआ ये समझ नहीं। and y equal to 8 -8y और ये जो -28 है। y equals to 8 3 हाँ 24 वो साइन बदल जाएगी ना, 8। बराबर Is this है ये। clear? साइन हाँ किसकी बदलेगी? जी नहीं उनको ये नहीं पता चला कि इधर जो ये जो आपने -8y है तो इधर प्लस हो जाएगा ना, हम माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगी ना, इसलिए वो उनको पता नहीं चला। अब पता चला जिसको नहीं पता चला था, अब पता उनको चला। नहीं पता चला। किसको नहीं पता चला था? अब मैम इधर ये इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं कौन बोल रहा है सबसे पहले? तो एक मिनट, कौन है ये? बप्पा बप्पा बाप्पा जी। यस, तो बाप्पा जी यहाँ पे माइनस माइनस, ये तो आप क्लियर है ना? ये कट हो गया, ये क्लियर है? यस और नो? क्लियर। यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, और ऊपर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये क्लियर है पार्ट? 23 हो गए। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, -28 है, राइट? बट हमने जैसे पहले बताया साइंस को रिवर्स किया, तो बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हम था, और अगेन हमने माइनस इंटू माइनस, व्हाट डू यू गेट? प्लस। सो दैट्स द रीजन। क्लियर? ओके मैम, डन। ओके, तो ये था एक पॉइंट। ओके, तो जैसे आपको y मिल गया, फिर आप उसको डाल दीजिए इक्वेशन में, आपको x भी मिल जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी ये वो सॉल्व करेगा जिसको एक पकड़ बन गई है क्वेश्चंस की, या फिर यूं कहे तो इजी है। जैसे दो फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट्स या कोई भी कोएफिशिएंट्स थोड़े से इजी से लगे, तो ये आप बिल्कुल फॉलो करें। इट विल हेल्प यू सेव योर टाइम एंड देयरबाय सॉल्व इट in the minimum possible time. ठीक है? But this is it. Apart from this type, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ज्यादा टफ नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठानी है कि हमें यहाँ वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से यहाँ को, बीच में साइन आएगा, देन यहाँ से इसको और इसको यहाँ से, जिससे कि हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स सी हाउ टू डू इट। ओके, 4 दूनी 8, so x into -8, 5 3 15 -15 equals to 4 बचा 16 6 5 20 507 माइनस 8 5 20। हाँ, ओके, दिस इज इट। सो x is equal to माइनस ऑफ 8 दूनी 16। मैम एक मिनट, हाँ जी बताइए। ये +15 आएगा ना, आपने -15 लिखा है। नहीं, हाँ माइनस करना है, सॉरी आई एम सॉरी, समझ में आ गया मुझे। ओके, A1 B2 -B2 A1, ओके, B2 B1 A2, ओके ओके। whatever you get, what will it be? 8 7 8 9 था 138, right? 138 with the negative sign. So 21 8 कौन सा आएगा? Let me just confirm this is correct. Yes, correct है ना? तो what do you get? XS इसे 21 तूने बेचा, 21 so 21 is this value correct, right? -23 आएगा। 23, एक मिनट,
15, 16, 17, 18, 19, 20. हाँ तभी करेक्ट. सो इट विल बी 23 के 23, 6, राइट. 23 संग 38 से, right? When you know x as 6, you just have to put the value to get the y. How to put the value? Sadhu ne now I'm putting this in first equation. So Sadhu ne 12 x is equal to 6. Okay. 5y equals to 52. So 5y equals to 52 minus 12. Kitni yenar? How much will you get? 40. Right? So 5 5 40. Y equals to 8. Y is equal to 8. It is easy. It is easy provided we don't do silly mistakes. है ना? कभी कभार जब आप स्क्रीन पे रहते हैं, when you are have the pressure, तो थोड़ा बहुत mistakes हो जाते हैं, but we should not allow that to happen either. है ना? तो yes. Is this clear? Now साक्षी जी आप अभी पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो. नो मैम. क्लियर है, राइट? यस. इट्स जस्ट दैट हम साइन को रिवर्स करते हैं. जब यहाँ से एक हो गया माइनस दिस पार्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज अनदर इक्वेशन. सो यहाँ पे भी मैंने सॉल्व करके रखा था. सो दिस इज हाउ इट इज. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन वेयर वी हैव गॉट 3x plus 4y equals to 32, 6x minus 7y equals to minus 11. ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल टू 32 है. मतलब पहले क्या था? माइनस 32 इक्वल्स टू 0. मतलब यू हैव टू मेक श्योर दैट फर्स्टली एक राइट हैंड साइड वाला 0 है, राइट हैंड साइड. तो जैसे भी ये कॉन्स्टेंट्स को आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करिए एंड सॉल्व टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर. अब यहाँ पे भी जैसे रश्मि दीदी ने ट्रिक बताई थी कि यू कैन मेक द एक्स वैल्यू 0 ना, कोएफिशिएंट्स. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वी कैन पुट दिस मल्टीपल, पुट दिस इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाय 2, है ना. जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6x हो गए. यहाँ पे मेन पर्पस क्या है? पहले पार्ट को नलिफाई करना. तो 4 दूनी 8y equals to 64. Right? So माइनस सब जगह पे कर लीजिए. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन माइनस का प्लस हो जाएगा. So what you get in return is yes. So what we get it in return? Yeah. So what is the solution? ये कट हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे. y is equal to 15y equals to what? 75. Isn't it? 75. 15 पंचेचा 15 15 15 25 75. Y equals to 5. Y equals to y is equal to 5. X is equal to 4. परफेक्ट. बहुत अच्छे, सुंदर. ओके, वेरी नाइस. डन. क्लियर है? बस एक बार एक कोई भी कोएफिशिएंट मिल गया, उसको सब अप्लाई करना है, डालना है, देन यू आर डन. लेट्स नाउ वो पहले वाला जो 6 है उसको बराबर करने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया बाद में, ताकि हमारा एक पार्ट. सी मेजर थिंग यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करना है. तो जैसे ही एक कोएफिशिएंट नलिफाई हो गया, ये कट हो गया, तो बस आपको एक वेरिएबल है, सॉल्व तो कर ही सकते हैं. एक वेरिएबल 2 इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं, बट 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, तो उसके लिए फिर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आप अगर नलिफाई कर रहे हो, मतलब इफ यू कैन चेक लाइक रिमूव देम, देन बेस्ट, इजी हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो अभी जैसे मैंने बताया वही इक्वेशन सॉल्व किया था. वी हैव इनफ टाइम
to now go for the next concept. Okay, so let me